Hello everyone. We were doing lesson number 2, that is structure of atom, and in last video we are done with phenomena of black body radiation and your Planck's quantum theory. So basic difference between electromagnetic wave theory and Planck theory is, according to electromagnetic wave theory, if any source is emitting energy or if any source is emitting radiation, so the flow of radiations or flow of energy will be what? Continuous. The energy will flow continuously. So from here, Maxwell suggested that the light possesses what? Wave character, as the flow of your energy is what? Continuous. But we will talk about Planck. So Planck suggested that if any source is radiating energy, clear, so the flow of energy will be what? Discontinuous, and it will be in the form of small packets. So from here he concluded that as energy is flowing discontinuously, then it will not possess what? Wave character, and he suggested that your light will possess what? Light will possess your particle nature or particle character. Clear? So basic difference between your your electromagnetic wave theory and Planck's quantum theory is that according to electromagnetic wave theory, your light possesses wave character, whereas according to Planck's quantum theory, your light possesses what? Particle nature or particle character. The second point of difference is, according to electromagnetic wave theory, your energy of electromagnetic radiation is directly proportional to intensity, and it is independent of frequency and wavelength. But if we'll talk about your Planck's quantum theory, so he suggested that the energy of electromagnetic radiation is directly proportional to frequency. It is not independent. Clear? So these are the basic difference between your electromagnetic wave theory and your Planck's quantum theory. Now the topic for today's video is photoelectric effect. Now we'll discuss photoelectric effect. So in 1887, your Heinrich Hertz performed a very interesting experiment in which he ejected electrons, in which electrons were ejected when metals, certain metals like your what? Cesium, potassium, rubidium. Clear? So when certain metals like cesium, potassium, rubidium were exposed to a beam of light, and he named this phenomena as photoelectric effect. So he described a very interesting phenomena, that is ejection of electron is taking place when your metal surface is exposed to what? Certain beam of light. Clear? And he named it as photoelectric effect. Now why photoelectric effect? As we know, the packets of energy for light are known as what? Photons. So we are incidenting photons here. So on incident of what? On striking of photons, electrons are emitting. So photo for packets of light, electric for ejection of electrons. So that's why it is known as photoelectric effect, or we'll say photoelectric effect is what? The phenomena of ejection of electron when the light of suitable frequency falls on what? Certain metal surface. This is known as photoelectric effect. Now while doing this phenomena, or while doing this effect, he made three observations. What were these three observations? So his first observation is the ejection of electron is instantaneous. What do you mean by the ejection of electron is instantaneous? It means that electrons are ejected from a metal surface as soon as beam of light strikes this metal surface. जैसे ही आपकी beam of light इस metal surface को क्या करती है? स्ट्राइक करती है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स निकलना क्या हो जाते हैं? शुरू हो जाते हैं. ऐसा नहीं होता कि अभी आपके पास beam of light स्ट्राइक किया और उसके आधे घंटे बाद इलेक्ट्रॉन निकलेगा. Clear? So the ejection of electron will start as soon as your beam of light will strike the metal surface. Clear? There is no time lag between your striking of beam of light and ejection of electron. So this was a very first observation of your what we'll say of your Heinrich Hertz. Clear? So I'll take your NCERT and I'll show your very first. So the ejection
or the electrons are ejected from metal surface as soon as beam of light strikes the surface. जैसे ही आप लोगों ने क्या किया, लाइट को स्ट्राइक कराया, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करना, रिमूव होना शुरू हो गए, इजेक्ट होना शुरू हो गए. देयर इज नो टाइम lag between the striking of light beam and the ejection of electron from the metal surface. कि इलेक्ट्रॉन के निकलने पे और स्ट्राइक करने पे कोई भी गैप नहीं है, कोई भी लैग नहीं है. So this was his first observation. Clear? I'm not wasting my time in writing. So this was his first observation. So what was his first observation? His first observation is, as soon as your beam of light is striking the metal surface, then only at that time only your electron will start emitting. Clear? Or ejecting. Clear? There is no time lag between your striking of photons and ejection of electrons. So this is his first observation. Now, so what is his second observation? So according to him, he said that the number of electrons ejected, कि कितने आपके पास इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी. कि आपके पास हम लोगों ने कितने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट कर रहे हैं वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, इंटेंसिटी पे. क्लियर? सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इंटेंसिटी. सो सेकंड पोस्टुलेट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ejected are directly proportional to intensity, and we know what is intensity, brightness. Clear? That is brightness of light. So this was his second observation. So what was his first observation? So as soon as your beam of light is striking the metal surface, on that time your electron will start ejecting. Clear? So there is no time lag between what? Between the striking of electron and ejection of electrons. Second postulate. So the number of electrons ejected are directly proportional to brightness of light. कि कितने electrons eject हो रहे हैं वो किस पे depend कर रहा है, brightness पे, not on frequency. Clear? So number of electrons ejected are directly proportional to brightness of light. Clear? That was his second observation. Clear? We'll draw conclusions afterwards, but firstly we'll discuss the points. Clear? So third observation. What was his third observation? His third observation is, for each metal there is a characteristic of minimum frequency. कि अगर हम किसी भी मेटल की बात करें तो उसके लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए. क्लियर? ऐसे नहीं है कि किसी भी फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा. क्लियर? फॉर ईच मेटल देयर इज व्हाट, minimum frequency. There is a characteristic of minimum frequency, and this is known as your what, threshold frequency to observe what, photoelectric effect. क्लियर? कि किसी भी अगर आप लोगों ने मेटल सरफेस से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हर एक मेटल के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए. क्लियर? हर एक मेटल के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी. फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों ने एग्जाम्स में पास होना है तो आपको 33% मार्क्स चाहिए. क्लियर? 33% मतलब 100 में से 33 मार्क्स चाहिए. अगर 33 से 32 है तो आप फेल हो, 31 है तो भी फेल हो, 29 है तो भी फेल हो, 25 है तो भी फेल हो. क्लियर? 32 है तो भी फेल बोलोगे, 28 है तो भी फेल होंगे. क्लियर? सो दैट 33 इज नोन एज व्हाट, थ्रेशहोल्ड वैल्यू फॉर यू. सो सिमिलरली अगर हम बात करें कि किसी भी मेटल सरफेस से अगर हमें इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना है तो उसके लिए हमें मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए. अगर उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी से आपके पास फ्रीक्वेंसी कम है इस बीम ऑफ लाइट की तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा. क्लियर? सो फॉर ईच मेटल देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच इज नोन एज थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी. सो व्हाट इज थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी? मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन. Clear? Or minimum frequency on striking with metal surface the electron will be ejected. Clear? So for each metal there is a characteristic of minimum frequency which is known as what, threshold frequency, and below this frequency your photoelectric effect will not observed. Clear? अगर इससे नीचे है frequency तो आपके पास तो आपके पास इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा. बट हाँ, अगर ऊपर है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट भी होगा, यहां से निकलेगा भी और उसको कुछ काइनेटिक एनर्जी भी मिलेगी. मतलब यहां से हिल जाएगा,
अपनी इस एटम और इस एटम के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स एटम्स और एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो क्या है अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करेगा, इस मेटल से बाहर निकलेगा। क्लियर? सो जो आपके पास हम लोग फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी कहाँ यूज हो रही है? इस एटम से इलेक्ट्रॉन को डिसलॉक करने में, बाहर निकालने में। क्लियर? अगर फ्रीक्वेंसी बराबर है तो ये आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ डिस्प्लेस होगा, इस एटम को छोड़ेगा। बट अगर उसको बाहर इजेक्ट करना है तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा चाहिए। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी वो फ्रीक्वेंसी इस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में क्या करेगी? हेल्प करेगी। क्लियर? सो व्हाट इज थर्ड पोस्टुलेट? सो फॉर ईच metal there is characteristic minimum frequency and which is known as your threshold frequency below which photoelectric effect is not seen. But what if your frequency is more than threshold frequency? So if frequency is greater than threshold frequency, the electron will come out with certain kinetic energy. So very first postulate is your what? That ejection of electron is instantaneous Clear? Ejection of electron is instantaneous. Number 2, number of electrons ejected is directly proportional to brightness. Clear? And for each metal there is a characteristic minimum frequency, and if your frequency is below than that frequency, that is threshold frequency, the ejection of electron will not take place. Clear? And if your frequency is greater than that of your threshold frequency, so your electron will be ejected with certain kinetic energy. So the main two observation is what? So number of photons ejected are directly proportional to what? Intensity. And your kinetic energy of electrons are directly proportional to what? Frequency. कि कितने जो number of photons निकल रहे हैं वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं? इंटेंसिटी पे। और जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो किस पे डिपेंड कर रही है? फ्रीक्वेंसी पे। कि अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं होगा, और अगर फ्रीक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट भी होगा और उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी आएगी. सो this phenomena was not explained by your classical mechanics, but this phenomena was explained by Einstein in 1905. So in 1905 your Einstein describe or explained phenomena of photoelectric effect by using what? By using Planck's quantum theory. By using Planck's quantum theory of electromagnetic radiation. So by using your Planck's quantum theory, Einstein in 1905 described or explained phenomena of photoelectric effect. Clear? It was done by whom? Hendrik Hertz, but explained by whom? Your Einstein. Clear? So Einstein in your 1921 he got Nobel Prize for explaining what?
for explanation of what? Photoelectric effect. Now how he explained this phenomena, we'll talk this. So his very first observation is that ejection of electron is instantaneous, कि जैसे ही आपके पास एक बीम ऑफ लाइट यहाँ पे स्ट्राइक करती है वैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलता है. अब बच्चे, अगर आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये मान लीजिए ये आपके पास इलेक्ट्रॉन है या ये फेविकॉल का बॉक्स है, इसको अगर मूव कराना है तो मुझे यहाँ से क्या लगानी पड़ेगी? एनर्जी. ये तभी मूव करेगा जब आपके पास क्या होगी? मेरे इस पेन के पास क्या होगी? एनर्जी. अगर इस पेन के पास एनर्जी नहीं होगी तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट नहीं हो सकता. सो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कैरिड आउट ओनली इफ this light is having what? Particle nature. Clear? So ejection of electron is carried out only if your beam of light is having what? Particle nature. और particle nature किसने explain किया था? प्लैंक ने. Clear? आपके पास अगर इसके पास कुछ particle nature means क्या है? कि इसके पास कुछ momentum है. क्लियर? कुछ आपके पास वेलोसिटी है. अगर इसके पास आपके पास मोमेंटम ही नहीं है, इसके पास कुछ मास नहीं है, मोमेंटम इज व्हाट? मास इनटू वेलोसिटी. सो अगर आपके पास इस लाइट के पास अगर काइनेटिक एनर्जी, सॉरी, इस लाइट के पास अगर पार्टिकल नेचर नहीं है तो ये आपके पास बॉक्स यहां से मूव नहीं कर सकता. इजंट इट? सो ejection of electron is carried out only as your light is having what? Particle nature. So ejection of electron is carried out only because light is having particle नेचर. क्लियर? क्योंकि लाइट के पास क्या है? पार्टिकल नेचर है, तभी आपके पास क्या है? ये इलेक्ट्रॉन जो है आपके पास क्या कर रहा है? इजेक्ट हो रहा है. क्लियर? नाउ इन दिस पॉइंट वी आर ऑल्सो हैविंग द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंस्टेंटेनियस, कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, जैसे ही ये फोटोन्स यहाँ पे हिट कर रहे हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? एमिट हो रहा है. सो व्हेन अ फोटोन ऑफ सफिशिएंट एनर्जी स्ट्राइक इलेक्ट्रॉन ऑफ द atom of your what? Metal, it transfer its energy instantaneously. Clear? It transfer its energy instantaneously to the electron during the collision, and electrons get what? Ejected. That without delay. क्लियर? इजंट इट? कि अगर आपके पास, आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स आपके पास इंस्टेंटेनियसली कैसे एमिट हो रहे हैं? बिकॉज आपके पास यहाँ पे जो बीम ऑफ लाइट है या फोटोन्स जो हैं उनके पास क्या है? एनर्जी है. और जब ये फोटोन्स एनर्जी के साथ क्या कर रहे हैं? इस एटम के इलेक्ट्रॉन को या इस मेटल में जो एटम्स हैं उसके इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक कर रहे हैं, तो अपनी एनर्जी किसको पास कर दे रहे हैं? इस इलेक्ट्रॉन को. क्लियर? आई एम रिपीटिंग दिस अगेन. These photons are having what? Certain energy. क्लियर? इनके पास कुछ एनर्जी है. तो जब ये फोटोन्स अपनी एनर्जी क्या कर रहे हैं? इस मेटल के एटम के इलेक्ट्रॉन को पास कर रहे हैं, तो एनर्जी कहाँ से ट्रांसफर हो रही है? फोटोन से कहाँ को? इलेक्ट्रॉन्स को. और वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन क्या कर जा रहे हैं? निकल जा रहे हैं. क्लियर? तो एनर्जी का क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है फोटोन से कहाँ को? इलेक्ट्रॉन्स को, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इंस्टेंटली क्या कर जा रहे हैं? निकल जा रहे हैं. उनमें कोई भी टाइम लैग नहीं हो रहा. क्लियर? सो what we'll say, when a photon of sufficient energy strikes your electron of your metal, or electron in the atom of the metal, it transfers the energy instantaneously. Clear? Instantaneously to the electron during the collision, and the electron is ejected without your any delay. Clear? Isn't it? ये चीज समझ आए? अगर किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लेना. Clear? So greater the energy possessed by your what? Photon, greater will be the what? Transfer of energy. Now this was his very first observation. I hope this is clear to you. Now we'll discuss your second observation. So what is second observation? Number of electrons are ejected are directly proportional to intensity or brightness of light. So firstly we'll understand what is intensity. For example, दिस इज, यू आर हैविंग दिस ऑब्जेक्ट. क्लियर? ये ऑब्जेक्ट है और अंधेरा कमरा है. क्लियर? अब मान लो आपने यहाँ पे 4 रेडिएशंस डाली. क्लियर? आपने यहाँ पे क्या करी? 4 रेडिएशंस क्या करी? डाली. क्लियर? अब आपको क्या करेगा? ये दिखाई देगा.
ठीक है, आपने रेडिएशंस डाली इस पे तो ये दिखाई देगा। अब अगर आपने इसमें सिर्फ 4 ही रेडिएशंस डाली तो ये आपको थोड़ा कम, उसकी जो आपके पास जो लाइट डल रही है, अब लाइट तो गिर रही है बट आपको दिखाई कैसा देगा, थोड़ा कम दिखाई देगा। अब इन 4 रेडिएशंस की जगह मैं 4 और रेडिएशंस डाल दूं, ठीक है, तो अंधेरा थोड़ा कम होगा, ब्राइटनेस बढ़ेगी, क्लियर, और ब्राइटनेस बढ़ेगी तो आपके पास क्या होगा, आपको अच्छे से दिखाई देगा। अब इसकी जगह यहाँ पे मान लो मैंने पहले 4 रेडिएशंस डाली, मतलब जो इंटेंसिटी थी वो कितने की थी, 4 की, क्लियर। मैंने 4 रेडिएशंस और ऐड कर दी, क्लियर। सो अगर नंबर ऑफ रेज ज्यादा हो जाएंगी तो ब्राइटनेस भी क्या हो जाएगी, ज्यादा। अगर आपके पास 4 थी तो ब्राइटनेस क्या थी, कम। 4 रेज थी तो ब्राइटनेस क्या थी, कम। बट 4 से मैंने कितनी कर दी, अब 8, तो ब्राइटनेस क्या हो गई, ज्यादा। अब 8 से अगर मैं क्या कर दूं, 16, तो ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, और भी ज्यादा, इजंट इट। सो जितनी ज्यादा नंबर ऑफ रेज बढ़ती जाएंगी ब्राइटनेस उतनी ज्यादा क्या करती जाएगी, बढ़ती जाएगी, इजंट इट। अगर मैं थोड़ी सी लाइट, अगर थोड़ी सी रेडिएशंस डालूंगी तो ब्राइटनेस कम होगी। अगर रेडिएशन का नंबर बढ़ जाएगा तो आपके पास ब्राइटनेस भी क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। सो इंटेंसिटी ऑफ फोटोन्स और नंबर ऑफ रेडिएशंस पर व्हाट इज योर इंटेंसिटी, व्हाट इज इंटेंसिटी, सो इंटेंसिटी इज नंबर ऑफ रेडिएशंस हिटिंग पर यूनिट टाइम, कि एक यूनिट टाइम पे कितनी रेडिएशंस हिट कर रही हैं। तो जितनी ज्यादा रेडिएशंस या जितने ज्यादा फोटोन्स हिट करेंगे उतनी ज्यादा क्या होगी, इंटेंसिटी। एम आई क्लियर टू यू, कि अगर हम बात करते हैं इंटेंसिटी की तो व्हाट इज इंटेंसिटी, नंबर ऑफ फोटोन्स और नंबर ऑफ रेडिएशंस हिटिंग पर यूनिट टाइम। तो जितनी ज्यादा रेडिएशंस हिट करेंगी उतनी ज्यादा क्या होगी, इंटेंसिटी, मतलब उतनी ज्यादा क्या होगी, ब्राइटनेस। अब हम बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ फोटोन्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्राइटनेस। सो बच्चे जितने ज्यादा आपके पास क्या होंगे, फोटोन्स होंगे, जितने ज्यादा फोटोन्स कोलाइड करेंगे इस मेटल सरफेस के साथ, अगर एक फोटोन कोलाइड करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, 2 फोटोन कोलाइड करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, और जितने ज्यादा आपके पास फोटोन्स कोलाइड करेंगे, जितनी ज्यादा रेडिएशंस कोलाइड करेंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एमिट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इंटेंसिटी इज नथिंग बट इंटेंसिटी इज नंबर ऑफ रेडिएशंस hitting per unit time, clear. So more will be the radiations, number of so intensity is number of radiations, or you'll write photons, clear. So more will be number of photons, more will be electrons ejected, therefore more will be number of photons, more will be what, ejection of electrons, clear. So what we are saying is, for example, कि आपके पास 4 रेज की इंटेंसिटी क्या है, I। अगर मैंने 4 और कर दी तो I और I कितना हो गया, 2I। 4 और बढ़ा दूं तो क्या हो जाएगी, 3I। तो जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ रेज बढ़ाती जा रही हूँ इंटेंसिटी क्या करती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और इंटेंसिटी बढ़ रही है मतलब ब्राइटनेस भी क्या कर रही है, बढ़ रही है। और अब जितनी ज्यादा रेडिएशन स्ट्राइक करेंगी मेटल सरफेस के साथ उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, आपके पास इजेक्ट होंगे, क्लियर। सो दैट वाज द सेकंड ऑब्जर्वेशन यही बोलती कि जैसे जैसे हम इंटेंसिटी या ब्राइटनेस बढ़ा रहे थे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, बट रीजन वाज नॉट नोन। सो रीजन क्या था कि इंटेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ फोटोन्स और नंबर ऑफ रेडिएशंस हिटिंग पर यूनिट टाइम। सो जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स हिट करेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, क्लियर। नाउ थर्ड पोस्टुलेट इज, फॉर ईच मेटल देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिनिमम फ्रीक्वेंसी, कि हर एक मेटल के लिए अगर हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना है तो उसके लिए कुछ मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, कुछ मिनिमम क्या चाहिए, एनर्जी, clear. So as we know, your metals have what, atoms, and to remove electrons from the outer surface of atom, every metal require what, energy. We know that your every metal is having what, atom, and if we want to remove electron from the outermost shell of atom, we require what, energy, isn't it? We require what, energy for removal of this electron. So now the minimum energy required for a removal of electron from this atom is known as what, threshold energy. So the minimum energy required for the removal of electron
फ्रॉम दिस एटम इज नोन एज व्हाट, योर थ्रेशहोल्ड एनर्जी, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेव योर वर्क फंक्शन। क्लियर। सो अगर हम बात करते हैं बच्चे, किसी भी एटम से अगर हम लोगों ने, किसी भी मेटल के एटम से अगर हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो उसे हमें एनर्जी चाहिए। क्लियर। और जो मिनिमम एनर्जी चाहिए इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, दैट इज नोन एज व्हाट, थ्रेशहोल्ड एनर्जी, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, थ्रेशहोल्ड, सॉरी, इसे और हम क्या कहते हैं, वेव फंक्शन, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट, W। क्लियर। नाउ लेट द लाइट हैज फ्रीक्वेंसी न्यू। फॉर एग्जाम्पल, अब हम लोगों ने, ये एटम है, ये मेटल एटम है, इससे आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन क्या करना है, इजेक्ट करना है, इससे इलेक्ट्रॉन क्या करना है, इजेक्ट करना है। क्लियर। सो अब इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, सो नाउ लेट द लाइट हैज फ्रीक्वेंसी, नाउ दिस लाइट इज हैविंग फ्रीक्वेंसी व्हाट, न्यू, this light is having what, frequency new, so the photon will have energy what, we know E is equals to what, h nu, so इस यहाँ पे जो फोटोन होगा उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, h nu। क्लियर। अब मान लीजिए यहाँ पे जो एटम है इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए, दैट इज व्हाट, h nu नॉट। क्लियर। न्यू नॉट क्या होती है, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब अगर ये जो एनर्जी है वो इस थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या है, कम है, इफ दिस h nu नॉट, h nu is what, less than what, h nu naught, or your h nu naught is greater than h nu, then what will happen, no electron will be ejected, no electron will be ejected। ऐसा है या नहीं, यही बोला ना हम लोगों ने क्या बोला कि मान लिया कि जो लाइट है, इस लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी है, न्यू। क्लियर। तो आपके पास फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, एक फोटोन की एनर्जी प्लैंक्स ने दी है, E इज इक्वल्स टू व्हाट, h न्यू। क्लियर। अब मान लिया ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी एनर्जी कितनी है, h न्यू नॉट। सो अगर इस एटम से इलेक्ट्रॉन को हमें निकालना है, इससे अगर हमने इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमें आपके पास कितनी एनर्जी चाहिए, दैट एनर्जी इज इक्वल्स टू व्हाट, that energy must be greater than that of what, h nu naught। अगर इससे कम है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा, अगर इसके क्या है, बराबर है, तो इलेक्ट्रॉन विल ओनली डिस्प्लेस, अब एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी, विल ओनली डिस्प्लेस। क्लियर। And if it is having what, your energy greater, if h nu is having energy greater than that of what, h nu naught, सो क्या हो जाएगा, इस यहाँ पे आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन विल हैव व्हाट, काइनेटिक एनर्जी। क्लियर। आप बोलोगे कि फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे थे, अब एनर्जी। अब बच्चे आपके पास प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू तो कांस्टेंट ही है, h इज कांस्टेंट फॉर एवरीथिंग। क्लियर। तो अगर सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट यहाँ पे गिरेगी, फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, E इज इक्वल्स टू व्हाट, h न्यू। तो जब अगर आपकी पास फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो एनर्जी क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है ज्यादा। तो हम जब एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हम किसके टर्म्स में बात करेंगे, एनर्जी के टर्म्स में। क्लियर। सो what we are saying that now let the light has frequency nu। Clear. Therefore the photon will have energy h nu। Clear. So अगर हमने मान लिया कि ये आपके पास जो एटम है इसमें आपके पास इसकी जो आपके पास थ्रेशहोल्ड एनर्जी है या वर्क फंक्शन है, दैट इज व्हाट, योर लेट अस सपोज 20। क्लियर। और आपने यहाँ पे जो एनर्जी डाली, क्लियर, जो आपने यहाँ पे एनर्जी डाली दैट इज ओनली 10, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। क्लियर। सो यही बोला मैंने कि अगर आपके पास वर्क फंक्शन थ्रेशहोल्ड एनर्जी से अगर एनर्जी क्या है, कम, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। अब मान लो ये क्या है, बराबर। क्लियर। अब जो आपने सेकेंड टाइम ली और इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है आपके पास, 20, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा, हाँ जी बिल्कुल निकलेगा, बट सिर्फ डिस्प्लेस होगा, इसको कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं मिलेगी। क्लियर। नाउ लेट अस सपोज कि यहाँ पे एनर्जी, अब आपके पास इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो गई, ज्यादा। मान लो ये कितनी हो गई आपके पास, 25, इसको कितनी चाहिए, 20, तो बाकी की एनर्जी कहाँ जाएगी, बाकी की एनर्जी जाएगी आपके पास इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने में। क्लियर। सो यहाँ पे कोई इजेक्शन नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ डिस्प्लेसमेंट होगी। क्लियर। काइनेटिक एनर्जी नहीं मिलेगी, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी होगी और साथ में इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी भी मिलेगी। नाउ
Einstein give expression for this. So your h nu is what? Energy of photon, isn't it? h nu क्या है? एनर्जी है किसकी? फोटोन की. क्लियर? अब ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस कब होगा? अगर मान लिया इसकी एनर्जी कितनी है आपके पास? 25. क्लियर? अब आपको इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए? 20. क्लियर? इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए? 20. अब जो बाकी एनर्जी बच गई वो कहाँ यूज होगी? काइनेटिक एनर्जी को आने में. तो दैट इज नोन एज व्हाट? 5 क्या है आपके पास? काइनेटिक एनर्जी. सो 25 क्या है आपके पास? वैल्यू ऑफ एच न्यू. क्लियर? Which is equals to what? H nu naught. What is H nu naught? H nu naught is a minimum energy required to eject this electron. और जो बाकी एनर्जी बच गई वो कहाँ यूज होगी? काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में. सो यहाँ से ये रिलेशनशिप आप लोगों का डराइव हुआ दैट H nu is equals to H nu naught प्लस काइनेटिक एनर्जी. क्लियर? सो इस तरह से आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपके किसने? आइंस्टाइन ने डिस्कवर किया. और ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट. एच इज कॉमन, सो न्यू माइनस न्यू नॉट, that is equals to what? Kinetic energy. And we know kinetic energy is what? Half mv square. Clear? So this is all about your photoelectric effect, but we are left with one diagram which is given in your NCERT. So here we are having what? Here we are having your discharge tube. This discharge tube is fitted with two electrodes. Two electrodes. One is your what? Metal surface is fitted with a metal surface, and this metal surface is connected to a negative terminal of battery, and here we are having detector. Clear? And detector is connected with the positive terminal of battery. Firstly it is connected with emitter, and then it is connected with the positive terminal of battery. The function of this detector is to count the number of electrons those are coming out from the metal surface. Clear? So when no light is falling on this metal surface, nothing is happening. No emitter will not show any deflection, as we are having battery, but still your electrons are not moving because your battery is of very low voltage. Clear? So now when we are throwing light of suitable frequency, or when we are throwing light of less frequency or frequency less than threshold frequency, then no electrons are ejected from this metal surface. But when the light of suitable frequency falls on this metal surface, so electrons from the atoms of the metal will start what? Coming out, and they will start moving from your metal surface towards your what? Detector. As a result, your circuit will complete. Here circuit is what? Incomplete. So as electrons will start flowing, the current will start flowing, and your emitter will show deflection. Initially, as electrons are not moving from here to here, so there is no deflection. But as soon as we start falling we start falling photons, or we start falling light of suitable frequency over this metal surface, the electrons are ejected from this metal surface, and circuit will complete. As a result, your emitter will start showing what? Deflection, and current will start flowing. Clear? So now what we have done, हमने क्या किया, इस लाइट की आपके पास फ्रीक्वेंसी को क्या रखा? सेम रखा, बट इसकी इंटेंसिटी बढ़ा दी. मतलब जितनी रेडिएशंस निकल रही थी उससे ज़्यादा रेडिएशंस थ्रो करना स्टार्ट कर दिया. देन व्हाट वी फाउंड कि आपके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं, उन जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल रहे थे उसका नंबर क्या कर गया? बढ़ गया. तो हमें क्या पता चला कि जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आपके पास इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या कर रहा है? बढ़ रहा है. और जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी क्या कर रही है? बढ़ रही है. सो दिस इज ऑल अबाउट योर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. नाउ व्हाट इज application of your photoelectric effect? So photoelectric effect is used in your solar panels. Clear? आप solar panels में photoelectric effect को use करते हैं. ठीक है? आप different metals use करते हैं. For example, these solar panels are having different metals.
So cesium is used in your solar panels because cesium is having what? Big size. cesium का साइज क्या है? बड़ा है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन है वो बहुत कम होती है। तो अगर लाइट जो है वो कम फ्रिक्वेंसी की भी गिरेगी तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ईजिली क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। क्लियर? सो cesium इज बेस्ट फॉर शोइंग व्हाट? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर? सो अगर आप लोगों ने क्या करना है, ये आपके पास क्या है? सोलर पैनल है, इसमें आपने सीजियम मेटल लगा रखा है और आपके पास सनलाइट इस पे गिरती है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होना स्टार्ट होंगे। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या करते हैं? अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ करते हैं, जिससे आपके बल्ब्स ग्लो करते हैं। क्लियर? सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। थैंक यू।